Good morning children. Today we will see our new topic, that is convection. Before convection we have seen conduction. There are three mode of transfer of heat. One is conduction, next is convection, and after that we will see that radiation. What we have seen in conduction first? Suppose we have a iron rod and this end is hotter than, suppose temperature of this end is 50 and temperature of this end is 20 degree. It's mean that this end is hotter than this end. तो क्या होगा बेटा, heat will transfer from this end to this end. Why? Iron is a conductor. Through conductor heat can transfer, but through the insulator heat will not transfer. तो जब ये एंड आपका ज़्यादा गर्म है बेटा तो इससे हीट ट्रांसफ़र होगा और ये हीट आपका इधर तक ट्रेवल करेगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन? कंडक्शन में क्या होगा बेटा, जब ये एंड हीट होगा तो वो हीट स्लोली ट्रांसफ़र होगा. बट इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब जिससे पूरा आयरन हमारा बना हुआ है, तो पूरा आयरन के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते, वो अपने प्लेस पे ही रहेंगे. मीन्स conduction is a process of transferring of heat in which particles of conductors will not move. मतलब इसके जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है जिससे ये बना हुआ है, वो पार्ट्स मूव नहीं कर रहा है, फिर भी हीट ट्रांसफर हो रहा है. बट इन द केस ऑफ कन्वेक्शन, फर्स्ट आई विल डिफाइन द कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच heat is transferred from hotter region to colder region by the particles of that substance. तो जनरली इन सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बाइंडेड होते हैं, क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर विल नॉट मूव. बट इन द केस ऑफ लिक्विड जनरली कंडक्शन टेक प्लेस इन अ सॉलिड and convection take place generally in liquid and gaseous. Why convection cannot take participate in solid? Because suppose it is solid and just suppose that it is a conductor, but it is an insulator actually, but suppose that it is a conductor. So when we will heat that part we will see that the particle will not move. जो जहाँ पे वहीं पे रहता है, कोई भी पार्ट आगे पीछे नहीं आता, but heat transfer होती है. But in the case of liquid you can see at home in a kitchen. So when we will provide heat, तो क्या होगा, ये आपका नीचे वाला जो लिक्विड है, वाटर है, वो हीट होगा. आफ्टर दैट हीटेड लिक्विड विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये हीट आपका ऊपर जाएगा और फिर ऊपर वाला हीट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, एज वेल एज ये हीटेड हीट वहाँ तक लेके जाएगा हीट को, और फिर वो पार्टिकल भी हीट होने लगेगा. इट्स मीन दैट कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ये जब हम गर्म करते हैं तो आप देखते हो बॉयल, जब वाटर बॉयल होता है तो क्या होता है, उसका मूवमेंट दिखता है, उसमें बबल्स आते हैं. इट्स मीन दैट हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. डिफरेंस क्या है इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते, जनरली ये सॉलिड में होता है. इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं बट जनरली इन्हें लिक्विड एंड गैसियस में होता है. सो कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन बाय द मूवमेंट ऑफ इस पार्टिकल. जब नीचे का वाटर गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर ऊपर के वाटर भी गर्म होने लगेंगे. दैट इज द प्रोसेस. अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी विल सी दैट द एप्लीकेशन ऑफ convection which is given in our textbook, that is, please read the textbook, then you will understand. Land breeze and sea breeze, two breezes are given in the textbook. What is the meaning of breeze? Breeze is just nothing but just a movement or flow of air. So hot air and cold air, land breeze and sea breeze means, in the meaning of land breeze means breeze or air will move from land, and sea breeze meaning is air will move from sea. So convection is a process in which heat will transfer from hotter region to the colder region by the movement of particle. So it can take part in the liquid as well as in gaseous, because we know that in gaseous continuously particles are moving in our atmosphere. So liquid and particles of liquid and gaseous are moving, then heat will transfer by the movement of particle. Now sea breeze and
land breeze. Just understand, suppose this is your land and sea. First, the movement of breeze from land to sea is known as land breeze. Okay, and movement of breeze from sea to land is known as sea breeze. पहले तो डेफिनेशन समझ लो सिंपल. ब्रीज मतलब जस्ट मूवमेंट ऑफ एयर. सो जब आपकी हवा एंड दैट विल कनेक्ट along with air, water vapor will also move. So movement of water vapor along with air is just known as breeze. And now when we will say that it is a land breeze, when breeze move from land to sea, that is called land breeze, and when breeze move from sea to land, that will be called sea breeze. But the question is, कौन सी एयर मूव करेगा डे में एंड कौन सा नाइट में. ओके, सो डे में एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछेंगे कि लैंड ब्रीज मूव्स ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द नाइट. तो उसको समझने के लिए बेटा ये जो लैंड है, generally land heat faster than the sea in during the day. We know that during the day temperature is high, sunlight रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. इट्स मीन दैट लैंड एंड सी बोथ विल हीट. ओके बेटा, सिंपल. सो पहले कौन हीट होगा जल्दी? लैंड हीट होगा. एंड ड्यूरिंग द नाइट जब सन नहीं रहेगा तो क्या होगा उस टाइम? दोनों कूल होगा, तो लैंड जल्दी कूल भी हो जाता है. ओके, लैंड जल्दी हीट भी होता है और जल्दी कूल भी होता है. अभी हीट होने और कूल होने से क्या लेना देना है बेटा, वो समझो. ड्यूरिंग द डे व्हेन हीट इज प्रेजेंट और सनलाइट इज प्रेजेंट, लैंड विल हीट फास्टर देन द सी. सो द एयर प्रेजेंट इन द लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो आपका मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन. वाई? Generally in water cycle you have studied that by the process of evaporation liquid converts into gaseous state and that water vapor will form cloud. So air that is and hot air is lighter than the ये एयर जनरली आपकी हॉट एयर जनरली होती है जो वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है, और कोल्ड एयर आपकी हैवियर होती है. व्हाई इट इज हैवियर? बिकॉज इट कंटेन्स more amount of water in a liquid state. But why it is lighter? Because water is present in generally dry and gaseous state. So land heats faster. So air present on land will heat faster, then it will start moving in upward direction. So when hot air move in upward direction in the atmosphere, then there is no air present on land. तो land का place क्या होगा? खाली हो जाएगा. So at that time sea breeze or air present on the sea which is colder and heavier, and that will start moving to the land for covering the space on the land. सिंपल बेटा, जब लैंड आपका जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसका एयर ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे एयर नहीं है तो प्लेस खाली होगा. एट दैट टाइम सी which is colder the air present there, so that air will start moving towards the land and that will fill the space present on the land. तो उस टाइम क्या होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम में, डे में क्या होता है बेटा? लैंड की एयर जल्दी हॉट हो जाती है तो वो ऊपर मूव करेगी, तो जो स्पेस खाली होगा उस प्लेस को फिल करने के लिए सी की तरफ से ब्रीज आएगी यहाँ पे. सिंपल, जस्ट नोट इट डाउन. हैवियर एयर विल मूव टूवर्ड्स द लाइटर एयर. तो ये ज़्यादा हैवियर एयर बिकॉज इट इज़ अ कोल्डर देन द लैंड एयर. ये जल्दी हॉट हो रहा है तो ये लेट हॉट होगा. लेट हॉट होगा मतलब कंपेयर टू द दिस एयर
इट विल बी अ कोल्डर, तो ये इधर मूव करेगा. बट ड्यूरिंग द नाइट पीरियड व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग द नाइट पीरियड लैंड कूल्स फास्टर, तो ये जल्दी कूल हो गया, ये आपका लेट कूल होगा, ये जल्दी कूल हो गया. तो अभी हैवियर कौन सी है, ये एयर है, अब ये लाइटर है, तो ये स्टार्ट करेगी मूविंग, ऊपर की तरफ मूव करेगी. तो उधर जो स्पेस वैकेंट होगा, जो खाली होगा, अब ये एयर जाकर के फुल फिल करेगी. तो कौन सा नाइट में कौन सा डे में मूव करेगा, पहले वो समझो. सिंपल, ब्रीज इज जस्ट एयर और movement of water vapor. Breeze moving, when breeze moving from land, that is the land breeze. When moving from the sea to the land, that is the sea breeze. sea से land की तरफ आएगी तो sea breeze, land से sea की तरफ जाएगी तो land breeze. सिंपल. ये डे में क्यों मूव करेगी और ये नाइट में क्यों मूव करेगी, ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले ये समझो. लैंड हीट फास्टर, अगर कोई चीज़ जल्दी गर्म हो रहा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर टू द नेक्स्ट मटेरियल. सो लैंड जल्दी हॉट होगा, तो हॉटर एयर इज लाइटर देन द कोल्डर एयर, सो इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वहाँ पे प्लेस जो खाली होगा, ये एयर उस प्लेस को भरने के लिए इधर मूव करेगी, तो दैट इज द कॉल सी ब्रीज. दिन के टाइम में ज़्यादा हॉट होता है इसलिए इधर मूव करेगी. ड्यूरिंग द नाइट व्हाट विल हैपन, लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, तो ये जल्दी कूल हो जाएगा. तो अब ये आपका ज़्यादा ठंडा है, ये आपका कम ठंडा है रात में. तो ज़्यादा ठंडा है तो उधर की तरफ आएगी जो कम ठंडा है. ये कम ठंडा है बेटा, सॉरी, लैंड जल्दी ठंडा हो जा रहा है, मतलब इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी दैट इज द हैवियर देन द सी एयर. तो ये हैवियर एयर विल स्टार्ट मूविंग टू द सी. आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम. Air, when air move from land to sea, that is the land breeze. When air move from sea to land, that is the sea breeze. During the daytime, lands heat faster than the sea, so hot air present there will move in upward direction. So जो place vacant होगा, खाली होगा, वो sea जो कि जिसके पास heavier air है वो move करेगा इधर. रात में क्या होगा, लैंड जल्दी से कोल्ड भी हो जाएगा, तो उधर जो एयर होगी वो हैवियर होगी, इधर अब लाइटर एयर होगी, तो ये हैवियर एयर उधर मूव करेगी, वो प्लेस की एयर अपवर्ड मूव कर जाएगी जो प्लेस खाली होगा. तो ये प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है. ओके, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से. अंडरस्टूड बेटा? सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, कन्वेक्शन. इन नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट रेडिएशन. थैंक यू बेटा.